وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے 72 گھنٹے میں گرفتار ہونے چاہیے۔ ان دہشت گردوں کے کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چلائے جائیں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 75 سال میں جو ازلی دشمن نہ کر سکا، عمران خان کے مسلح جتھوں نے کر دکھایا۔ کور کمانڈر ہاؤس جو ایک تاریخی جناح ہاؤس ہے، اس کو آج دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مکمل طور پر جل چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں جو ہمارا ازلی دشمن جو نہ کر سکا، وہ بدقسمتی سے 9 مئی کو عمران نیازی کے سپرویژن میں اس کے مسلح جتھے نے جناح ہاؤس کو مکمل طور پر راکھ میں تبدیل کر دیا۔ عمران نیازی اور ان کا جتھا ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، وہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردوں اور پاکستان کے دشمن سے کم نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دفاعی تنصیبات اور سیاسی مخالفین پر حملے سیاسی کلچر نہیں۔ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں، ایک فتنہ ہے۔ پلاننگ کے تحت افراتفری اور فساد پھیلایا گیا۔ یہ ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا۔ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے؟ لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا۔ اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 4 سال تک عمران خان لوٹتا رہا، اب اس کے ہواری لوٹ رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ اور اداروں کا دفاع کریں گے۔ تحریک طالبان اور تحریک انصاف GHQ پر حملہ کرتی ہے۔ عمران خان کو ان مقدمات میں ضمانت دی گئی جو قائم بھی نہیں ہوئے۔ وہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 4 سال عمران خان لوٹتا رہا اس ملک کو، اور اب اس کے ہواری جو ہے لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہی ہے، تجاوز ہو رہا ہے، ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ آئین کے مطابق جو ہے تمام جو ہے اس کی ٹیریٹری کی حفاظت کرے۔ یا تحریک طالبان پاکستان GHQ پہ حملہ کرتی ہے یا تحریک انصاف کرتی ہے۔ ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے، سوچا بھی جو ہے آپ نے، اس کے اوپر بھی ضمانت ہے۔ اور JUI نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چاروں صوبوں سے ہزاروں کارکنوں کے قافلے اسلام آباد لانے کی تیاریاں۔ کوئٹہ اور کراچی سے کارکنوں کے قافلے کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ PTM نے فیصلہ کیا پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، اور آج تک نہیں دیکھا منصف فریق بھی ہوں، فیصلہ بھی صادر کریں۔ منصف نے ہمارے اور عمران کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا تھا۔ JUI نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چاروں صوبوں سے ہزاروں کارکنوں کے قافلے اسلام آباد لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سوموار کے دن 15 مئی کو PDM نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ یہ نہیں دیکھا کہ منصف وہ فریق بھی ہو اور فیصلہ بھی وہ صادر کرے۔ میرا فریق ہے عمران۔ میں نے اپنا کیس لے کر عدالت میں حاضر ہونا تھا، عمران نے بھی عدالت میں حاضر ہونا تھا، اور منصف نے
हमारे बयानात की रोशनी में फैसले सादिर करना था, लेकिन मुनसिफ वो फरीक बन गया, एक फरीक के साथ मिल गया। अब वो फरीक भी है, मुनसिफ भी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास, इस्लामाबाद पुलिस का कोई अफसर इजलास में शिरकत के लिए ना आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदार पुलिस अफसरान के ना आने पर इजहार तशवीश। रजिस्ट्रार की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर के रोज़ सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्तों का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। 26 मई को 9:30 बजे समाअत होगी। एसोसिएट वकील के मुताबिक इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। इमरान खान ने 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्तों का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी हो चुका है। और लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और पीटीआई की 17 खवातीन की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लाहौर से मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की खवातीन की नज़रबंदी का मामला जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार जुल्फ़िकार मलिक के वकील अहमद अवैस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया। अदालत नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 22 मई को फ्री कैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने पीटीआई की 17 खवातीन की नजरबंदी भी खत्म कर दी। अदालत ने पीटीआई वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। दौरान समाअत एडिशनल आईजी पंजाब पेश हुए और बताया कि अली अफजल शाही को गिरफ्तार किया, ना ही मगवी हमारी हिरासत में है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इस्तफसार किया कि एक शहरी लापता हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है। एडिशनल आईजी ने बताया कि कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है, हमने टीम तश्कील दे दी है। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने बाजियाबी के लिए मोहलत मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 15 मई को रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। यूं तो पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी और शरपसंदी के वाक़यात वक्तन फवक्तन होते रहते हैं, लेकिन 9 मई से शुरू होने वाले शर्मनाक सानहात से इस मुल्क को दो चार होना पड़ा। इसकी मिसाल 75 साल मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शरपसंदों ने मुल्क भर में सरकारी इमलाक बिलखुसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इन तमाम तर वाक़यात में पाक फौज ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। 3 रोज़ जारी रहने वाली इस तशद्दुद की लहर में क्या क्या कुछ तबाह हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शरपसंदों ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए, जो भी सामने आया उसे रोंद डाला। मुश्तिल कारकुन मंसूबाबंदी के तहत हसास इदारों की तंसीबात को निशाना बनाते रहे। बुलवाइयों ने रावलपिंडी में GHQ में दाखिल होने की कोशिश की। जुड़वा शहरों में मुजाहिरीन के पथराव से मुतादिद पुलिस और FC एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने थाना रमना पर हमला और तोड़ फोड़ की। SP इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस भी नजर आतिश कर दिया। मुश्तिल हुजूम ने लाहौर के तारीखी जिना हाउस में जो लूट मार और तबाही की उसकी नजीर नहीं मिलती। घर का कीमती सामान लूटने के साथ गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। जिना हाउस की इमारत में आग लगा दी, जली इमारत और बिखरा सामान। ये सवाल करता है कि सियासी जमातें और उनके कारकुन क्या ऐसे एहतजाज करते हैं? इस दौरान फराइज की अंजाम दही के दौरान पंजाब पुलिस के DIG को भी शदीद जख्मी कर दिया गया। 3 रोज तक लाहौर की सड़कों पर जली गाड़ियों के ढांचे, लूट मार के बाद नजर आतिश की गई इमारतें और प्लाजे शरपसंदों की इश्तियाल अंगेजी और बर्बरियत की गवाही दे रहे हैं। 9 मई को सारा दिन तोड़ फोड़ करने और बदअमनी फैलाने के बाद मुश्तिल कारकुन रात भर लूट मार करते रहे। अस्करी प्लाजा में घुसकर तोड़ फोड़ की, गाड़ियों के शोरूम के शीशे तोड़कर सामान लूटा और एक ATM भी उठा कर ले गए। हमारी रेपुटेशन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेचर की कंपनीज काम करती हैं और वो यहाँ से बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं या अपने सेटअप्स को सपोर्ट करते हैं बाहर। तो देखें कितने लोगों को जॉब मिली हुई है, वो सारे के सारे शेकी हैं।
तो ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये जो इन्होंने हरकत की है वो ग्राउंड फ्लोर पे रही। लाहौर में अस्करी टावर के अलावा आर्म्ड सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और CST में ऐसी तबाही की गई जो अब खंडरात का नमूना बन चुके हैं। कारकुनों के इस गैर जिम्मेदाराना और पुरतशद्दुद रवैये की मुल्क भर की सिविल सोसाइटी ने शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। क्या हम एक फर्द वाहिद को इक़्तिदार के खातिर ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो तमाम रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करे? क्या हम एक फ़र्द वाहिद को इक़्तिदार के खातिर ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो रियासत पाकिस्तान को हमारे सरों पर ज़मीन बोस कर दे, गिरा दे? क्या ये इजाज़त इक़्तिदार के खातिर एक फ़र्द को, एक सियासी जमात को, एक ग्रोह को दी जा सकती है? 9 मई और 10 मई को ये काम दुश्मन भी अब तक नहीं कर सका हमारे साथ, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने कुछ लोगों ने और हमारी एक सियासी जमात जो कि रजिस्टर्ड है ऑफिशियली और उस पर तमाम पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं, उन्होंने कर दिखाया इन 2 दिनों के अंदर। कराची में भी पुरतशद्दुद जमात के वर्कर दंदनाते रहे और शहर में मार धाड़ और तोड़ फोड़ करते रहे। सियासी जमात के कारकुनों के मुजाहिरों में लूट मार का अंसर भी आया था और वो जलाओ घेराव के साथ लूट मार भी करते रहे। समाजी रहनुमा अब्दुल हई ने कहा कि आलमी इंसानी हकूक का मंशूर आपको इजहार राय की आज़ादी और सियासत की इजाज़त देता है। आलमी इंसानी हकूक का जो मंशूर है वो आपको इजाज़त देता है एहतिजाज करने का, आपको बोलने की आज़ादी है, आपका हक़ है कि आप बात करें, सियासत करें, सियासी जमात बनाएं, वोट देने का हक़ है, वोट लेने का हक़ है, ये सारे हकूक़ आपके पास है। जो कुछ आप गाड़ियों को जलाना, सरकारी अमलाक पे हमले करना, नुकसान पहुंचाना, ये बात समझने की है कि ये तमाम चीज़ें आवाम की हैं। आवाम के पैसों को इस तरह से ज़ाय करना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है। अगर एहतिजाज तशद्दुद की तरफ रुख अख्तियार करे तो वो फिर आप हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप आम आदमी को नुकसान। पेशावर में भी मुश्तिल मुजाहिरीन ने चाही पहाड़ के मॉडल को जला डाला। रेडियो पाकिस्तान की कदीम तारीखी इमारत को नजर आतिश किया। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में घुसकर लूट मार की और जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। रेडियो पाकिस्तान की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी जला दिया गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने हश्त नगरी के इलाके में असलहे की दुकान भी लूट ली। शरपसंद और बुलवाइयों ने लूटे जाने वाले असलहे से सरेआम फायरिंग की और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर भी तशद्दुद किया। सफाक मुजाहिरीन ने यहाँ पर ही बस न की बल्कि एम्बुलेंस से मरीजों को उतार कर एम्बुलेंस को आग लगा दी। इन सब मनासिर को देखकर कौन ये यकीन कर सकता है कि ये एक सियासी पार्टी का एहतजाज था या कोई दहशत गर्दी हो रही थी। समाजी रहनुमा सारन बरनी का कहना है कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में सियासी कारकुन कानून को हाथ में लेने की बजाय अपने हकूक के लिए कानून का सहारा लेते हैं। ऐसी तंजीम जो ये कहते थे कि हम एक टायर भी नहीं जलाते, वो तंजीम अगर इतना भयानक अमल करे कि हमारी सरकारी अमलाक पे गरीबों की बसें किसके लिए, गरीबों के लिए, अमीरों की सवारियां नहीं हैं, उस पे हमले किए गए, वो जलाई गई या जो कुछ किया गया आर्मी के साथ किया गया, मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा इक़दाम है। और वो तंजीम जो ये कहती थी कि जो भी अगर आप क्लियर हैं तो अदालत से रब्ता करें, जब ये दूसरी पार्टियों को पकड़ते थे, तो आज अगर आप पकड़े गए तो मैं समझता हूँ उन्हीं अदालतों में आपको भी जाना चाहिए। अपने इक़्तिदार के लिए आप मुल्क का जनाजा निकाल दें, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मियांवाली में मुजाहिरीन ने PAF-MM आलम बेस मियांवाली पर भी हमला किया, तोड़ फोड़ की और हसास इदारे की तंसीबात को नजरे आतिश किया। मियांवाली में PTI के मुश्तिल मुजाहिरीन ने थाना कबर मिशानी को आग लगा दी। थाने में मौजूद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जला दी। पुलिस एहलकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। सवात में भी PTI के मुश्तिल हजूम ने सवात मोटरवे प्लाजा चकदरा को भी नजरे आतिश किया, वहाँ पर लूट मार भी की गई। तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ का कहना है कि PTI कारकुनों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ और हमारी जग हंसाई हुई। जो कुछ पिछले एक आधे दिन में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई और जो रवैया PTI के कारकुनों ने बरपा रखा, जिसमें बहुत तोड़ फोड़ की, आम लोगों के लिए बहुत एक अजियतनाक, आम शहरियों के लिए एक अजियतनाक जो था वो एक वजह बन गई। एक तरह से एक बर्बरियत का एक नमूना था जो कि पेश किया गया, जो उसकी आई थिंक ये वो रेड लाइंस हैं जो कि कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अभी कर्टेल करें और इनका कोई हल निकालें। इमरान खान की गिरफ्तारी की आड़ में किए गए एहतजाज से दरसगाहें भी महफूज न रह सकी। मालाकंड के इलाके तिमरगराह में शरपसंदों ने फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल पर धावा बोल दिया, इमारत को आग लगा दी। मुश्तिल अफराद ने स्कूल में तोड़ फोड़ की।
पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तारीखी किला चकदरा भी महफूज न रह सका। रात की तारीकी में किले की इमारत को आग लगाई गई, वहाँ खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया और शानदार इमारत को खंडर में तब्दील कर दिया। किले में बिखरा और जला सामान, अहाते में जली हुई गाड़ियों का मलबा इस बर्बरियत की दास्तान सुना रहा है। इसके अलावा FC बैरक मर्दान, मिलिट्री बैरक मर्दान, PAF की यादगार शोहदा सरगोधा, कलमा चौक और मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी को भी नजर आतिश कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी और एहतजाज के नाम पर बपा किए गए तूफान बदतमीजी से न सिर्फ मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, बल्कि इन मनाजिर ने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को भी मुतासिर किया। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। इस सब के बावजूद पाक फौज ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और मुल्क के वसीतर मुफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मनसूबा बंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि पाक फौज अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पाक फौज के हसन इक़दाम ने शरपसंदों की इस मजमूम साजिश को नाकाम बना दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वतन अजीज की सालमियत और इस्तेहकाम हर शय पर मुकद्दम है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कि मेयर का इंतखाब आप डायरेक्ट करवाएं, भाग गए, नहीं करवाया, डरते हैं। ये भी डर गए थे उस वक्त, MQM भी उस वक्त तो लाइन में थी, उस वक्त वो भी डर गई थी और नहीं करवाया इन्होंने। बहरहाल सेकंड हमने इनसे कहा था कि एनी पर्सन करवाएं, आप काउंसिल से नहीं, बाहर का भी रखें, नहीं किया इन्होंने। अब जब इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब मेयर का इंतखाब होने वाला है, तो इन्होंने असम्बली में अपनी जो वडेरा शाही अक्सरियत है उसके ज़रिए से, जागीरदारों की अक्सरियत से फिर ये पास कर लिया कि एनी पर्सन होगा और 6 महीने में उसका काउंसिल का मेंबर बने। उसूली तौर पर हमें इससे इख्तलाफ नहीं था पहले, लेकिन इस मौके पे करना बदनीयती का इजहार है और ये कुछ भी कर सकते हैं। जब इनकी गिनती पूरी नहीं होगी ना, पूरी खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, तो ये शो ऑफ हैंड भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई तरमीम करना जिसका ताल्लुक इलेक्शन के प्रोसेस से हो, अगर इख्तियारात से हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इलेक्शन के प्रोसेस से किसी तरमीम का ताल्लुक है तो कहां है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन सुनेगा, हम अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैसे आप अपनी मर्जी से चीजों को बदल सकते हैं?